The difference in aims. The difference in aim. The third one is in aims. So start from the beginning as we have done. Western economics, when considered maximum satisfaction for economic agents, then the aim of Western economics is the maximum material welfare for economic agents. The aim of Western economics is to achieve maximum material welfare for economic agents. But according to Islamic economics, the aim of economic agent is to maximize material welfare not only in this world but also in hereafter. सिंपल वर्ड्स में जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है वो जस्ट इस दुनिया में मटेरियल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना चाहती है, लेकिन जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है, जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, वो फकत इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी अपने इकोनॉमिक एजेंट्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करने के लिए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाती है. ओके, द फोर्थ वन इज द डिफरेंस इन स्कोप. Very interesting. The difference in aim creates the difference in scope. The difference in aims creates the difference in scope. When the aims of Western economics and Islamic economics is different, then definitely their scopes are also different. Finally, the scope of Western economics. The scope of Western economics is limited to those activities of economic agents which result in material welfare. Which result in material welfare. But the scope of Islamic economics, the scope of Islamic economics is not limited. It is widened. It is widened because Islamic economics in the scope of Islamic economics, in the scope of Islamic economics, all activities are considered, all economic activities are considered which result in not only material welfare but also welfare in hereafter. अब वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में वो सारी इकोनॉमिक एजेंट वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जिनसे मटेरियल वेलफेयर हो, मैक्सिमम हो. इस्लाम वेस्टर्न इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होगा? इन वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एजेंट्स वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जिनसे उनको मटेरियल वेलफेयर मिलती है. वो कभी ऐसी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेंगे जिनसे उनको आखिरत में मटेरियल वेलफेयर मिलेगी. बट इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स all those activities are the part of its scope, which are performed for material welfare and also welfare in hereafter. अब वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में एक मैन वही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिसका मकसद इस दुनिया की वेलफेयर मैक्सिमम करना है.
जबकि वेस्टर्न इस्लामिक इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होगा? इसका स्कोप उन तमाम एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करेगा जिन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एजेंट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि हेयर आफ्टर में भी. द नेक्स्ट डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द मोड ऑफ रिसर्च. The method of research. Islamic economics and Western economics are different in the mode of research. How to do research in Western economics and Islamic economics? The first one is the mode of research in Western economics. The mode of research in Western economics is empirical and objective. Empirical and objective, but it ignores any metaphysical doctrine or values or doctrines to influence their analysis. Means its analysis. Western economics mode of research is empirical and objective. Empirical mean, objective mean, first of all, objective we have done already. इकोनॉमिक मैन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही होंगे जो हम पहले कर चुके हैं. तो डेफिनेटली जब भी वेस्टर्न इकोनॉमिक में हम कुछ रिसर्च करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए जाएंगे. कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कंज्यूमर्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव डिजाइन. Okay. The next mode of research, the next difference between Islamic economics and Western economics is the difference of the approach to economics, science or arts. Western economics is mostly considered as positive science. While Islamic economics can not only consider positive science but also consider normative science. Positive science in the sense, in the Western economics, all economic agents want to maximum satisfaction from limited resources. That is a positive statement. Now, their objectives are varied. Some household individuals get maximum satisfaction, some lowered, some further lowered. Similarly, some firms get maximum utility, maximum profit, some firms get lower profit. तो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स बेसिकली पॉजिटिव साइंस है जिसमें हम यही डिस्कस करते हैं कि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उन इकोनॉमिक एजेंट्स में कौन कौन है? आपके हाउस होल्ड
इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स, इंडस्ट्रीज है और गवर्नमेंट है। ये सारे के सारे इकोनॉमिक एजेंट्स क्या चाहते हैं? मैक्सिमम यूटिलिटी चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम वेलफेयर चाहते हैं। अच्छा, ये सब कुछ चाहते हैं। और जब इनका हम यूटिलिटी फंक्शन हम इनका देखते हैं या प्रॉफिट फंक्शन देखते हैं तो हमें एक सोशल बिहेवियर इनका नजर आता है। जितने हाउस होल्ड होंगे, जितने भी हाउस होल्ड होंगे, आपको उनका बिहेवियर कैसा नजर आएगा? सारे हाउस होल्ड मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करना चाहेंगे एक पिज्जा से, सभी ऐसे चाहेंगे। किसी को यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी, किसी की यूटिलिटी का लेवल क्या होगा। इट मीन ये सोशल साइंस है, बिहेवियर पे बेस करती है और बिहेवियर वेरी करता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सभी मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करना चाहते हैं, ठीक हो गई बात। लेकिन इसमें हम जब हम मॉरल वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं, नॉर्मल मॉरल वैल्यूज इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं एनालिसिस में, देन it becomes Islamic economics. Islamic economics is considered as not only positive science but also normative science. जब हम इसको normative science कहते हैं, then it becomes arts. फिर ये arts बन जाती है। अब इसका डिफरेंस सिंपल एग्जाम्पल के साथ आप समझें कि एक हाउस होल्ड इकोनॉमिक एजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैद एक हाउस होल्ड इकोनॉमिक एजेंट है, उमर एक इकोनॉमिक एजेंट है। वो क्या करते हैं? वो किसी फूड पिज्जा से मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करना चाहते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पिज्जा खाएंगे, जैद की यूटिलिटी और होगी, सेकंड पिज्जा खाएंगे, इसकी यूटिलिटी और होगी, उमर जो पिज्जा खाएगा उसकी यूटिलिटी क्या होगी और होगी। इट मीन उनका बिहेवियर वेरी करेगा, उनका बिहेवियर क्या करेगा? वेरी करेगा। सो इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव सोशल साइंस। सो सोशल साइंस जिस तरह ह्यूमन बिहेवियर वेरी करता है, इस तरह उन बिहेवियर की बेस पे हम इसको क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिव सोशल साइंस है, ठीक है। हम इसी बेस पे हम ये कहते हैं कि ये इनके सोल्यूशन एक्सैक्ट नहीं होते, ठीक होगी। इनमें हो सकता है सभी के सभी मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करना चाहते हैं, लेकिन कभी उनकी यूटिलिटी सेम नहीं होगी। इसी तरह सारी फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहती हैं, लेकिन कभी भी उनका प्रॉफिट एक जैसा नहीं होगा। क्यों? ह्यूमन बिहेवियर जब वेरी करता है, देन उसके आउटकम्स भी वेरी करते हैं। लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इस्लामिक इकोनॉमिक्स ये कहती है कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स जस्ट पॉजिटिव साइंस नहीं है, बल्कि नॉर्मेटिव साइंस भी है। जब ये नॉर्मेटिव साइंस बन जाती है, इट मींस ये आर्ट बन गया। आर्ट का मतलब क्या है कि आप जिस तरह के मर्जी एनालिसिस कर लें सम टाइम्स में, तो वो कभी भी रिजल्ट चेंज नहीं होता। लाइक अगर हम कहते हैं यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ पोर्क फॉर अ मुस्लिम कंज्यूमर, तो मुझे बताएं किसी भी मुस्लिम कंज्यूमर को उसको यूटिलिटी मिलेगी? जीरो, कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ बियर, अगर हम कहते हैं यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ बियर फॉर अ मुस्लिम कंज्यूमर, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई मुस्लिम कंज्यूमर कभी भी बियर नहीं लेगा, ना पोर्क खाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव एनालिसिस है। क्यों? मुस्लिम कंज्यूमर इस फंक्शन में वो मॉरल वैल्यूज को कंसीडर कर लेता है। वो मॉरल वैल्यूज क्या है? जो कुरान ने में दी है। कुरान कहता है कि ये दोनों चीजें आपके लिए क्या है? हराम है। जब दोनों चीजें हमारे लिए हराम है, देन हमारा बिहेवियर यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी वाला नहीं बनेगा, बल्कि हमारा बिहेवियर कैसे बनेगा? आर्ट्स वाला। हमारा बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होगा। सभी मुस्लिम्स का बिहेवियर क्या होगा? यूटिलिटी फ्रॉम बियर, यूटिलिटी फ्रॉम पोर्क इज इक्वल टू जीरो। द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस in emphasis on sectors of study. The difference in emphasis on sectors of study. In emphasis on sectors of study. वेस्टर्न इकोनॉमिक्स, इफ यू रिमेंबर वेस्टर्न इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ नेशन, अगर आपने वेल्थ ऑफ नेशन के वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ ने बुक राइट की थी, उसमें एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की है, एडम स्मिथ क्या कहता है? इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज या डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये चीजें डिस्कस करता है।
ओके, अब वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में हम फिर डिस्कस क्या करते हैं, हम यही चीजें डिस्कस करते हैं। और हमारा ज्यादा फोकस किस पे होता है वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में, हमारा वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में जो ज्यादा फोकस होता है वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे होता है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे। सेकंड फोकस क्या होता है हमारा, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ पे होता है। इन वेस्टर्न इकोनॉमिक्स जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें डिस्कस करते हैं, हम वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। इट मीन प्रोडक्शन प्रोड्यूस होने के बाद कंज्यूम कहां पे होती है, फिर जो उससे इनकम मिलती है सेल होने के बाद वो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन इसका फोकस वेस्टर्न इकोनॉमिक्स का जो ज्यादा फोकस है पहले प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे, फिर कंजम्पशन ऑफ वेल्थ पे है, फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बट इस्लामिक इकोनॉमिक्स बिहेवियर इज डिफरेंट, quite different. Islamic economics also deals with economic activities, all kind of economic activities, but the behavior of Islamic economics is designed with the focus of distribution of wealth. प्रोडक्शन को भी डिस्कस करता है इस्लामिक इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ को भी डिस्कस करते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, लेकिन जो फोकस है इस्लामिक इकोनॉमिक्स का वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्यों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जितनी ट्रांसपेरेंट होगी और जितनी अंडर मॉरल वैल्यूज होगी उतना सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होगी। वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में क्या है, जिन लोगों ने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है वो इनकम उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जबकि इस्लामिक इकोनॉमिक्स के नजदीक क्या है, इस्लामिक इकोनॉमिक्स ये कहती है कि वो वेल्थ जस्ट इनपुट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, बल्कि जो फाइनल इनकम है उसका कुछ शेयर पुअर पे भी कंज्यूम होगा, अपीयरेंटली जिनका उसमें कोई रोल नहीं है प्रोडक्शन में, उनका प्रोडक्शन में बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है, लेकिन वो लोग हम उनको कंसीडर करेंगे। क्यों, अगर उन लोगों को हम कंसीडर नहीं करेंगे देन हमारी सोसाइटी कभी भी स्टेबल नहीं होगी। क्यों, फीडिंग पुअर इज द डूइंग ऑफ इज द सुन्नह ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है और ऐसा करने से सोसाइटी आपकी प्रॉस्पेरियस होगी। ओके, सो दिस इज द वेरी की डिफरेंस इन एम्फसिस ऑन सेक्टर ऑफ स्टडी। तो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में एम्फसिस किस पे है, तीनों पे है, लेकिन प्रोडक्शन पे और कंजम्पशन पे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे ज्यादा फोकस है। इस्लाम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसीलिए इस्लामिक इकोनॉमिक्स में हम ज़कात का रोल बहुत कीनली डिस्कस करते हैं, ज़कात, उशर एंड अदर सदकात को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ the difference in emphasis on sector of study. So now we have done the difference between Islamic economics and Western economics in several subheadings, and so keeping in view of this difference, we can say that being a Muslim and being a rational man, Islamic economics gives the wide scope of guarantee to feed the poor, to make drinks the poor, and to help the poor, and to and work for the prosperity of Islamic society. So that is why being a Muslim and being rational, we prefer Islamic economics over the Western economics. Okay, now this is the end of our lecture.